Hello students, today again I am here with a very important topic, models. In the previous video I had introduced models to you and I had given some important points which we must keep in our mind while using models, and in this video I will discuss models one by one. So let's begin. So we will begin with can. So where we use can, what is the function of can? When we talk about power, ability and capacity, then we use can. So जब हमको पावर एक्सप्रेस करनी हो, एबिलिटी के बारे में बतानी हो या फिर स्पीकर की कैपेसिटी को एक्सप्रेस करना है, then we use can. So let's take some examples. Like, she can solve the problem easily. Here in this sentence we are talking about the ability of the speaker. जो she है उसकी ability के बारे में बात कर रहे हैं, that yes, she is able to solve the problem easily. So here we have used can. Next sentence, the manager can increase your salary. Here we are talking about the power of the manager. हम मैनेजर की पावर की बात कर रहे हैं. ही हैज़ द पावर टू इंक्रीज योर सैलरी. सो हियर वी विल यूज़ कैन. कैन इज एक्सप्रेसिंग द पावर which the speaker has. I can lift the box. Here we are talking about the capacity of the speaker. The speaker I has the capacity. He is capable enough to lift the box. So here in these sentences, in first we are talking about the ability, in second we are talking about the power, and in the third sentence we are talking about the capacity of the speaker. So it was the first function. Now the next function of can is to ask for and give permission in an informal manner. Permission मांगने के लिए या फिर देने के लिए we can use can also. Like, can I see your diary? Here we are seeking permission. हम permission मांग रहे हैं. Can I see your diary? Next, you can go now. Here we are giving permission that yes, you can go now. But mind it, can का use बहुत ज़्यादा, इन जनरल वी डोंट यूज़ कैन का यूज़ नहीं किया जाता है. जनरली वी यूज़ मे. ओके, सो इन इनफॉर्मल मैनर वी कैन यूज़ कैन. जब हम अपने बराबर के लोगों से बात कर रहे होते हैं, हमें परमिशन मांगनी होती है, लाइक आवर कलीग्स और आवर फ्रेंड्स, देन वी कैन यूज़ कैन. अदरवाइज कैन का यूज़ बहुत ही कम किया जाता है परमिशन देने या मांगने के लिए, क्योंकि ये रूड होता है. ठीक है. सो अगर हमें किसी बड़े से परमिशन मांगनी है या फिर किसी बड़े पोस्ट पे कोई इंसान है उससे हमें कोई परमिशन मांगनी है, सो इन फॉर्मल मैनर हम इसका यूज़ नहीं करते हैं. इट इज़ यूज इन इनफॉर्मल मैनर. But yes, we can use can for asking for permission and giving permission also, but in an informal manner. Now the next function of can is to express possibility. हम possibility को express करने के लिए भी can का use कर सकते हैं, but condition is that when we are 100% sure. okay, क्योंकि पॉसिबिलिटी के बारे में हम कभी भी श्योर नहीं हो सकते. हम वी कांट से दैट येस इट विल हैपन, इट कैन हैपन. ओके, हम हमेशा फ्यूचर को क्या करते हैं, वो प्रेडिक्ट करते हैं. वी आर नॉट ऑलवेज 100% श्योर अबाउट एनी एक्शन. बट इन केस इफ़ वी आर मोर देन 90%, वी आर श्योर मोर देन 90%, देन वी कैन यूज़ कैन. फॉर एग्जाम्पल, शी कैन कम टुडे. इट मीन्स दैट वी आर श्योर एनफ. हम 90% से ज़्यादा श्योर हैं. ओके, हम 100% के करीब श्योर हैं दैट येस शी कैन कम टुडे. लाउड नॉइस कैन डैमेज योर ईयर्स. हियर वी आर श्योर एनफ दैट येस if there is loud noise, so it can damage, it can harm our ears. So here possibility is more than 90%. ठीक है. Then in this condition we can use can also to express possibility, but in general वी डोंट यूज़ कैन फॉर एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी. हम कैन का यूज़ पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए तभी करते हैं जब हम 90% से ज़्यादा श्योर होते हैं किसी एक्शन के बारे में. अदरवाइज वी डोंट यूज़ कैन. सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ मॉडल कैन. नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट मॉडल. The next model is could. So where we use could, first point is as the past equivalent of can in indirect speech. So you must have read about indirect speech narration, and as we know that when we change the sentence from direct into indirect, we change can into could. So in this sense we use could. For example, Mani said, I can help you.
and if we change the sentence into indirect, so what will happen? Can will be changed into could. Mani said that she could help you. Okay, could हमने can की जगह could का यूज़ कर दिया, क्योंकि दिस इज़ द रूल ऑफ नरेशन. नरेशन का ये रूल होता है कि जब हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कैन को किस में चेंज कर देते हैं? कुड में. तो कुड का एक यूज़ ये होता है इन इनडायरेक्ट स्पीच. सो नेक्स्ट वन इज़ टू इंडिकेट पास्ट एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी. अगर हमें प्रेजेंट की एबिलिटी या पावर या कैपेसिटी को इंडिकेट करना है या उसके बारे में बात करनी है, देन वी यूज़ कैन. बट अगर हमें पास्ट की एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी की हमें बात करनी है, देन व्हाट वी विल यूज़ कुड. फॉर एग्जाम्पल, my brother could drive a car at the age of 16. Now here the phrase at the age of 16 refers that we are talking about past ability of the speaker. So at the age of 16 means 16 की एज में मेरा भाई क्या कर सकता था? वो कार ड्राइव कर सकता था. So here we are talking about the past ability of the speaker, so we will use could, not can. He could do 100 sit-ups once upon a time. Once upon a time हमें क्या बता रहा है? That we are talking about past. So here we are talking about past ability of the speaker. So here the appropriate model will be could. So now let's see the next function of could. To make polite request. So for making polite request we use could. As I told you कि can का यूज़ भी हम request के लिए या permission के लिए कर सकते हैं, लेकिन can क्या होता है? बहुत ही rude माना जाता है. ठीक है, उसका यूज़ हम बराबर के लोगों में करते हैं, फ्रेंड्स में करते हैं. बट हमें एक पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हमें किसका यूज़ करना चाहिए? कुड का यूज़ करना है. कुड क्या होता है? कैन से ज़्यादा पोलाइट होता है. तो हमें ऑफ कोर्स अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सो इट मस्ट बी पोलाइट. सो फॉर मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट वी यूज़ कुड. लाइक कुड आई पार्क माई बाइक हियर, कुड यू हेल्प मी कैरी दीज बैग्स. सो इन सारे सेंटेंसेस को पढ़ने से आपको खुद भी लग रहा होगा कि यस, someone is making polite request. If I use can here, can I park my bike here? So ये सुनने में कैसा लग रहा है? रूड लग रहा है, isn't it? So can का यूज़ हमें अपने बराबर के लोगों में करना चाहिए. And when we want to make polite request we use could. The next use of could is it can be used in imaginary sentences. It is used in imaginary sentences. Okay, कुछ imaginary sentences होते हैं जहाँ पे हम could का इस्तेमाल करते हैं. लाइक इफ़ आई हैड मोर मनी आई कुड बाई अ कार. अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होते और ज़्यादा पैसे होते तो मैं क्या करता? आई कुड बाई अ कार. मैं एक कार खरीद सकता था. इफ़ यू वर्कड हार्ड यू कुड सक्सीड. अगर आपने मेहनत की होती तो आप क्या कर सकते थे? आप सफल हो सकते थे. सो दीज आर इमेजिनरी सेंटेंसेस कि ऐसा हो सकता था. ओके, सो इन दीज काइंड्स ऑफ इमेजिनरी सेंटेंसेस वी यूज़ कुड का यूज़ हम इमेजिनरी सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं. सो दीज आर सम बेसिक फंक्शंस ऑफ कुड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट मॉडल. द नेक्स्ट मॉडल इज मे. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मे? टू टेक और गिव परमिशन इन अ फॉर्मल मैनर. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी फैमिलियर फंक्शन ऑफ मे इज़, जो सबसे फैमिलियर फंक्शन मे का होता है, टू टेक और गिव परमिशन. परमिशन देने या लेने के लिए इन फॉर्मल मैनर वी यूज़ मे. सो सम एग्जाम्पल्स आर हियर. मे आई यूज़ योर मोबाइल, मे आई कम इन सर. Very familiar sentence which we speak in school. May she live with you? Here in these sentences we are asking for permission, we are taking permission. Okay, may I use your mobile, may I come in sir, may she live with you? Yes, she may live with me. Here we are giving permission. So for taking and for giving permission, both in both cases, both the cases we can use may. So एक बहुत ही फैमिली और इम्पॉर्टेंट सा यूज़ होता है मे का, परमिशन देने या फिर परमिशन लेने के लिए इन फॉर्मल मैनर. और जनरली इन जनरल परमिशन देने या फिर लेने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं. मे का यूज़ ज़्यादा होता है. The next and a very important use of may is to express possibility और uncertainty. पॉसिबिलिटी या फिर अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम मे मॉडल का यूज़ कर सकते हैं. ओके, और पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए? व्हेन वी आर 50% श्योर. ओके, पॉसिबिलिटी कितनी है हमारी? 50% है. हो भी सकता है वो एक्शन और नहीं भी हो सकता है. देन वी कैन यूज़ मे.
ओके, लाइक इट मे रेन टुडे, सो देयर इज़ 50-50 चांस कि हाँ बारिश हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है. शी मे कम लेट, सो लेट आ भी सकती है या फिर शी कैन कम ऑन टाइम ऑल्सो. आई मे बाई अ कलर टीवी दिस ईयर. सो इस मे का यूज़ हम प्रेजेंट कंडीशन के लिए भी करते हैं एंड फ्यूचर के लिए भी कर सकते हैं. लाइक इन दिस एग्जाम्पल, आई मे बाई अ कलर टीवी दिस ईयर. सो इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट future. Yes, in future I may buy a color TV. I'm not 100% sure. 50-50 chances are there that I can buy a color TV. So for expressing possibility we use may. So previously जब मैं can बता रही थी, then there also I told you that to express possibility we can use can. बट कैन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम क्या होते हैं 100% श्योर हों या फिर 90% से ज़्यादा श्योर होते हैं, वहाँ सर्टेनिटी होती है, देन वी यूज़ कैन. बट जब हम जो पॉसिबिलिटी होती है वो क्या है 50% है, एक्शन हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, देन वी यूज़ मे. सो फॉर एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी वी यूज़ मे. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ मे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट another use of may, that is to talk about a wish, blessing, or curse. So if we want to make a wish for someone, we want to bless someone, or we want to curse someone, then which model is used? That is may. So it is also a very familiar use of may. For example, may you live long. So here what is being done here? Someone is wishing for someone. May God bless you. Very common sentence, familiar sentence. That is, we are blessing here. We are giving blessing to someone. May God ruin your life. It is a kind of curse. हम किसी को curse कर रहे हैं. May you always enjoy good luck. It is also a kind of blessing. So for wishing, for blessing, or for cursing, we use the model may in such kind of sentences. Now our next model is might. So first use of might is it is used as the past equivalent of may in indirect speech. So it is a very common use of might. We all know कि जब हम sentence को direct से indirect में बनाते हैं, then may is changed into might. So for example, Jia said I may get the job. Here may has been used in the sentence जो कि एक डायरेक्ट स्पीच है, एंड इन द नेक्स्ट सेंटेंस जो कि हम इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे तो व्हाट विल हैपन, जिया सेड दैट शी माइट गेट द जॉब. यहाँ मे को हमने किस में चेंज कर दिया है, माइट. सो एक बहुत ही सिंपल और कॉमन सा यूज़ है मे का कि यह माइट का, दैट इज इट इज़ चेंज इनटू might when we change the sentence from direct into indirect. So now let's see the next use of might. So the next use of might is to suggest a weak possibility. पॉसिबिलिटी के लिए हमने दो और मॉडल्स देखे हैं, कैन एंड मे. सो कैन का यूज़ हम कब करते हैं, व्हेन वी आर 100% श्योर. जब किसी एक्शन के होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, तब हम कैन का यूज़ करते हैं. और जब मैक्सिमम से कम हो, मीन्स 50% के आसपास पॉसिबिलिटी होती है, तो हम कैन का यूज़ नहीं करते बल्कि मे का यूज़ करते हैं. और जब सबसे कम पॉसिबिलिटी होती है, लेस पॉसिबिलिटी या फिर लीस्ट पॉसिबिलिटी, यू कैन से कि जब सबसे कम किसी एक्शन के होने की सबसे कम पॉसिबिलिटी होती है या बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी होती है, देन व्हाट वी यूज़ माइट. जैसे इट माइट रेन टुडे, हियर मीन्स रेन, बारिश होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है, मोर देन लेस दैन 50%, लेस दैन 25%, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश हो सकती है. सो वी विल से इट माइट रेन टुडे. ही माइट कम लेट, सो उसके लेट आने की पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत ही कम है, मीन्स वो टाइम पे आएगा. ओके, so in this sentence also we will use might. So in this condition, when there is weak possibility of any action, so we will use might, means उसके टाइम पे आने के चांसेस ज़्यादा हैं. सो इन दिस कंडीशन व्हेन द पॉसिबिलिटी इज़ सो वीक, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है किसी एक्शन के होने की, देन हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ माइट. द नेक्स्ट यूज़ ऑफ माइट इज़ टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन. सो फॉर टेकिंग परमिशन और फॉर गिविंग परमिशन या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, माइट का यूज़ भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माइट आई आस्क अ क्वेश्चन. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर यू कैन से दैट
हम परमिशन मांग रहे हैं, यू माइट मेक अ लिटिल लेस नॉइस। सो यहाँ पे हम क्या करें, किसी को परमिशन दे रहे हैं। सो फॉर परमिशन, टेकिंग परमिशन और गिविंग परमिशन या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या फिर परमिशन के लिए हम कैन का भी यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ मे, वी कैन यूज़ माइट एंड कुड ऑल्सो। बट कैन और मे से ज़्यादा पोलाइट क्या होता है, कुड होता है। ओके, कैन सबसे रूड होता है, फिर आप मे का यूज़ कर सकते हैं जो कि एक फॉर्मल तरीके से यूज़ किया जाता है। देन यू कैन यूज़ कुड ऑल्सो जो कि हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। और माइट के साथ क्या है, पोलाइटनेस के साथ इसमें हेजिटेशन का भी सेंस आता है। अगर आप किसी से परमिशन मांगने के लिए या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए थोड़ा हेजिटेटेड फील कर रहे हैं तो आप कौन से मॉडल का यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ माइट। ओके, माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, इन दिस सेंटेंस माइट क्या शो कर रहा है, पोलाइटनेस के साथ साथ आपकी हेजिटेशन को भी शो कर रहा है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट मॉडल इज़ मस्ट। मस्ट इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग मॉडल। इसको हम स्ट्रॉन्ग मॉडल कहते हैं क्योंकि ये किसी एक्शन को स्ट्रांगली एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स किसी एक्शन को एम्फसाइज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मस्ट इज़ टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। व्हेन समथिंग इज़ वेरी नेसेसरी टू डू, कोई एक्शन है जो बहुत ही नेसेसरी है करना, परफॉर्म करना, देन वी यूज़ मस्ट। लाइक वी मस्ट डू दिस राइट अवे। राइट अवे मीन्स राइट नाउ, हमें ये अभी करना है, ठीक है, ये काम हमें अभी करना होगा। सो वी विल यूज़ मस्ट व्हेन देयर इज़ नेसेसिटी, वी हैव टू एक्सप्रेस नेसेसिटी। और मस्ट एक ऐसा मॉडल होता है जिसका हम यूज़ प्रेजेंट के लिए भी कर सकते हैं एंड फ्यूचर के लिए भी कर सकते हैं। सो इट इज़ यूज्ड इन बोथ द टेंसेस। The next function of must is to express compulsion और strong moral obligation। अगर हमें कोई ऐसा एक्शन है जो कंपलसरी है करना, वी आर compelled टू डू दैट। ओके, जो हमें जिस काम को करने के लिए हम बिल्कुल compelled हैं, मजबूर हैं, इट्स compulsory टू परफॉर्म, देन वी यूज़ मस्ट। एंड स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन, जो हमारी मोरल ड्यूटीज़ होती हैं, स्ट्रॉन्ग मोरल ड्यूटीज़ होती हैं जिनको हमें परफॉर्म करना ही करना है, उन सारे मोरल ऑब्लिगेशंस या फिर ड्यूटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम किस मॉडल का यूज़ करते हैं, दैट इज़ मस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड। सो आप वैसा ही आपको करना है जैसा कि आपको कहा गया है। ओके, सो हियर देर इज़ अ कंपल्सन कि आपको वैसा ही करना जैसा कहा गया है। यू कांट डू द एक्शन इन योर ओन वे। हियर कंपल्सन इज़ बीइंग एक्सप्रेस्ड। वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस। ये क्या है, एक हमारी मोरल ऑब्लिगेशन है, मोरल ड्यूटी है कि हमें क्या करना चाहिए, एक इंसान को अपने प्रोमिसेस को पूरा करना चाहिए। सो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन। सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चंस। ये क्या है, एक तरह का मोरल ऑब्लिगेशन है, स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन कि आपको क्या करना है, सोल्जर्स को क्या करना है, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन उनको ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। सो टू एक्सप्रेस compulsion or strong moral obligation, we should use must in the sentences. The next function of must is टू एक्सप्रेस फिक्स्ड डिटर्मिनेशन। अगर हमको फिक्स्ड डिटर्मिनेशन को शो करना है, एक्सप्रेस करना है, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, मस्ट। वी मस्ट गो, हियर वी आर एक्सप्रेसिंग फिक्स्ड डिटर्मिनेशन। ओके, आई मस्ट फिनिश दिस वर्क बाई टमोरो। टमोरो तक मैं क्या है, अपना ये काम फिनिश कर लूँगा। इट मीन्स दैट वी आर शोइंग फिक्स्ड डिटर्मिनेशन। यहाँ स्पीकर अपने डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। We must firmly deal with the antisocial elements. Here also the fixed determination of the speaker is being expressed. So in these sentences we must use must. The next and the last use of must is to express duty and certainty. So if we have to express our duty, हमें duty को बताना है कि आपकी क्या duty है, so we should use must. Like a judge must be upright. एक judge को कैसा होना चाहिए, what is the duty of a judge, he must be upright. A soldier must fight for his country. एक soldier की duty क्या है, that a soldier must fight for his country. उसे अपनी कंट्री के लिए फाइट करना चाहिए। वी मस्ट विन द मैच। हियर वी आर एक्सप्रेसिंग द सर्टेनिटी कि हम बहुत ही सर्टेन है, बहुत ही श्योर है, वी आर श्योर इनफ दैट वी मस्ट विन द मैच। सो हियर फॉर एक्सप्रेसिंग ड्यूटी एंड सर्टेनिटी वी कैन यूज़ must as a model in the sentences.
So students, this is all for today. I hope that you must have understood the models which I have explained today, and the rest of the models we will discuss in the next video. Thank you.